गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसगेट गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कंप्यूटर और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया था। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द डेवलपमेंट phases of a computer on the basis of technology used are categorized into segments which are known as generation of computer. There are 5 generation of computer: first generation computer, second generation computer, third generation computers, fourth generation computer and fifth generation computer. फर्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेंज फ्रॉम द पीरियड 1948 to 1955. Computer of this generation following characteristics. First, computer were of a large size and perform operation at low speed. Second, vacuum tube were the main electronic components computer of this generation. Third, they did not have a concept of stored memory or stored programs. Fourth, machine language and assembly language was used in computers of this generation. Fifth, these computers generated a lot of heat when used. Sixth, identification and rectification of error was very difficult. And last, these computers were very expensive. ENIAC, EDVAC and UNIVAC first are the example of first generation computer. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1946 से 1955 था. इसमें जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देखिए. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर लार्ज साइज़ के थे और इनकी ऑपरेशन स्पीड लो थी. सेकंड, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ. थर्ड, इस जनरेशन में स्टोर मेमोरी और स्टोर प्रोग्राम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. फोर्थ, इस जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ. फिफ्थ पॉइंट, ये कंप्यूटर यूज्ड के समय काफ़ी हीट हो जाते थे. सिक्स पॉइंट, यदि किसी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन की एरर होती थी तो उसे ढूंढना बहुत कठिन हो जाता था. एंड लास्ट, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे. इनके एग्जाम्पल में ENIAC, EDVAC, UNIVAC फर्स्ट हैं. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. Computer developed during 1956 to 1964 come in the category of second generation. Characteristics of second generation computers are as following. First, smaller size of computers and increased processing speed as compared to computer of first generation. Second, transistor were the main electronic technology used in this computer. Third, they used the concept of memory and data storage. Fourth, high level language like BASIC and Fortran were used in second generation computer. Fifth, heat generation problem was reduced and debugging became easier. Sixth, cost came down and computer were less expensive. For example, IBM 17 and IBM 1401. सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड जो था वो 1956 से 1964 का था. इसमें इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट है, फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की तुलना में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड तेज़ थी और ये थोड़ी छोटी साइज़ के होते थे. सेकेंड पॉइंट, इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ. थर्ड पॉइंट, सेकेंड जनरेशन में मेमोरी और डेटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आया. फोर्थ पॉइंट, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक एंड फोर्ट्रॉन का इस्तेमाल इस जनरेशन में हुआ. फिफ्थ, कंप्यूटर के हीट होने की प्रॉब्लम इस जनरेशन में कम थी और साथ ही साथ एरर को भी आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता था. लास्ट पॉइंट, कॉस्ट, इस कंप्यूटर की कॉस्ट काफ़ी कम थी, यानी ये इस जनरेशन के कंप्यूटर लेस एक्सपेंसिव होते थे. एग्जाम्पल में IBM 70 एंड IBM 1401. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इट रेंज from the period 1965 to 1972. Computers of third generation had following features. First, computer of this generation were of further reduced size and cost. Second, the main electronic components of this generation was integrated circuit. Third, in this generation the concept of operating system came in. Fourth, refined high level language were used in these computer less.
थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1965 से 1972 का था। इस जनरेशन के कंप्यूटर की साइज़ और कॉस्ट दोनों ही काफ़ी कम होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। थर्ड पॉइंट, थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। फोर्थ पॉइंट, इस जनरेशन के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। एग्जाम्पल IBM 360, IBM 370, DEC 90 एंड PDP सीरीज। फोर्थ जनरेशन computers. These phases of computer were developed during 1973-1980 with the advancement in technology. The size of the computer became handy and portable. The computer cost was further reduced and processing speed measurement started in milli and microseconds. The main components of computer was integrated circuit only, but in large size and referred as very large scale integration, VLSI and microprocessor. फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1973 से 1980 का था। इस कंप्यूटर में काफ़ी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। इनकी साइज़ छोटी थी जिसके कारण वे आसानी से कहीं पे भी हैंडी और पोर्टेबल हो जाते थे। कंप्यूटर की कॉस्ट काफ़ी कम थी और प्रोसेसिंग स्पीड मिली माइक्रोसेकंड की थी। इसमें वेरी लार्ज स्केल साइज़ और माइक्रो प्रोसेसर दोनों का प्रयोग हुआ था। एग्जाम्पल में एप्पल, मैकिंटोश एंड क्रे फर्स्ट। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, द पीरियड फ्रॉम 1981 टू टिल डेट लाई एज अ फिफ्थ जनरेशन। द डेवलपमेंटल स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज डायनामिक एंड एक्सेसिवली फास्ट. All computers of present scenario come under fifth generation only. The basis technology remain the uses of microprocessor and in multiple numbers to give a dramatic increase in the overall functioning of the computers. Nowadays, engineers were working together to incorporate the artificial intelligence features in all commonly used computer system. फिफ्थ जनरेशन का टाइम पीरियड 1981 से आज तक चल रहा है। ये कंप्यूटर काफ़ी फास्ट होते हैं। इसका मेन कंपोनेंट्स माइक्रो प्रोसेसर होता है। नाउअडेज इंजीनियर इस कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत कंप्यूटर को ह्यूमन IQ प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि कंप्यूटर मनुष्य के समान काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल P2, P3, P4 एंड P5 सीरीज ऑफ इंटेल। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपके साथ हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।